Viewers, thank you for joining me. The Congress party has once again resorted to deceit and fakery. Barely moments after the Modi government issued the notification for India's 16th census slated for 2027, the Congress party accused the government of omitting the term caste census from the document. Viewers, with shrill rhetoric, they insinuated that the Modi government was attempting to, conceal its intentions, betraying the aspirations of people. That's the charge from the Congress party. But this manufactured outrage, viewers, is not just a fleeting act of political theatre. It's a glaring expose of Congress's own duplicity. A party whose historical record on caste census is steeped in evasion, half measures, and now blatant hypocrisy. I will tell you why. The Congress's salvo hinges on what they say is an omission. What is the omission? The absence of the word caste in the June 16th notification. Top Congress leaders have said that this is a U-turn by the Modi government on its promise to include caste enumeration. But viewers, this narrative collapses under the weight of historical scrutiny and a simple scrutiny. Let us rewind to 2011 when the Congress-led UPA government conducted the last census. The Gazette notification for that census, issued under their watch, conspicuously lacked any mention of scheduled castes or scheduled tribes. Yet, the 2011 census dutifully collected and published SC/ST data. Now, let's just pause here. Here's that document, the two documents that I want to show you. On the left is the June 16, 2025 document by the Modi government. What do you see? A simple 3-para note that tells you that the census will be carried out in the year 2027. Here's the UPA era document, this one here. So that you see this clearly, I'm holding a copy also. Now, this census announcement, the official notification under the UPA, the first notification, like this is the first notification of the census announcement by the Modi government that will happen in 2027. They're both similar. That does not talk about the caste enumeration, but the government on multiple occasions, at least 3, they have said that caste details will be collected. What's the catch is that there were at least 3 more notifications that gave out more details. So it was like details in a staggered manner. Here's the phase 1 notification. So the first notification is dated 20th February 2009. That is similar to the document that you have on the left hand side. The first phase notification came on 25th February 2010, 1 year later. 1 year later, they added more details. That details of religion, etc., will also be taken. Then in August that year, after February, where the second phase notification came, the third notification came on 21st August 2010, you can see the date. And that had all the details, SC/ST and everything else. Even religion data was conducted, as was the standard practice, viewers. By Congress's own logic today, would they accuse their own government of hiding SC/ST census? Because you see, that was not there in the first notification. Which is why it is nothing but absolutely absurd for the Congress to make the argument they are making. The document on the left is the Modi government census notification, and on the right is the Congress era census notification. It's all there. Viewers, the Congress party is not interested in facts, but in crafting a divisive narrative to incite and mislead. Their 2011 notification and the omission did not prevent SC/ST data collection.
Just as the 2025 notification silence on caste census does not deny its inclusion. It's simple. The MHA has already clarified that 2027 census will have caste data, marking the first such exercise since 1931, pre-independence. The MHA has even flagged Congress's claims as misleading, pointing to press releases from April 30th, June 4th and June 15th. I said 3 occasions that explicitly affirmed caste inclusion. Yet the Congress persists with its fakery, banking on public ignorance to fuel caste-based unrest. Viewers, the Congress's hypocrisy runs deeper than mere notification semantics. Their track record on caste enumeration is a saga of reluctance and political cowardice. Why do I say so? In 2010, you would remember, when demands for a caste census grew louder, what did the UPA government do? The UPA government did not pay heed. Instead, they opted for a separate socio-economic and caste census. They called it the SECC, a half-hearted survey conducted in 2011. This was a flawed exercise, viewers, with incomplete data, and it was never fully published or utilized. Viewers, the SECC was a political sop, a political lollipop designed to placate caste-based demands without actually committing to actionable outcomes. The Congress's propaganda machinery is no stranger to such fakery. There are many instances of maligning the Modi government through distortion and propaganda. Viewers, as India prepares for this historic census in 2027 with caste enumeration, the Congress at the very least must confront its own reflection. A party that has repeatedly fumbled on the opportunity to lead on a caste census is now crying foul when others are wanting to deliver. This is not muhabbat ki rajniti, viewers. This is plain and simple झूठ की राजनीति. Sample the reactions. और इसमें सिर्फ जनगणना की बात है, जाति जनगणना नहीं है. तो क्या हमारे जो पलटी मास्टर हैं, हमारे पीएम हैं, क्या एक और बार अपना उन्होंने मन बदल लिया है? क्यों इस अधिसूचना में कास्ट को लेकर, जाति को लेकर इसका कोई जिक्र नहीं किया गया? हालांकि 30 अप्रैल को घोषणा की गई. Governments are not run by press releases, they are run by notifications and government orders. Here is the Government of India order of yesterday, notification of yesterday. Where does it talk about caste? It doesn't. कांग्रेस पार्टी झूठों की व्यापारी है, फेक न्यूज की फैक्ट्री है, फेक न्यूज की जननी है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एनडीए सरकार अब कास्ट सेंसस नहीं करवा रही. इसका भी फैक्ट चेक हो चुका है, और एक नहीं अनेकों बार, क्योंकि कल ही जो पीआईबी द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बैठक के बाद, उसमें साफ साफ लिखा है कि कास्ट एन्यूमरेशन किया जाएगा. जिस तेलंगाना राज्य का उदाहरण दे रहे हैं, पहली बात तो वहां सर्वेक्षण हो रहा है, सेंसस नहीं, स्पष्ट समझना चाहिए. दूसरा, जिस राज्य का उदाहरण दे रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री तो अभी बोल रहे हैं, उनका आज ही का बयान आया है कि पैसे की कमी हो गई है, कल्याणकारी योजनाओं में देने के लिए पैसा नहीं, और ये पहली बार नहीं हुआ है. You heard the reactions. Let's quickly open this up. Tuhin Sinha, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Professor Naval Kishore Yadav, national spokesperson of the Rashtriya Janata Dal. IP Singh, national spokesperson of the Samajwadi Party. Romesh Sabarwal, leader of the Congress Party. Vivek Srivastava represents many parties here on the panel. Dr. Anand Ranganathan needs no introduction. Vivek Srivastava, I began by, I didn't want to waste time. There were people who said, you can bring in this result or this detail about the 2011 notification a little later in the show. But I wanted to start with it. And which is why I'm asking you a straightforward question. जब आप लोगों ने सेम काम किया, तो अब झूठ क्यों फैला रहे हैं? हाँ सर, आप पहले बताइए, 8:08 हो गए और 8 मिनट से आप सिर्फ कांग्रेस बैशिंग कर रहे हैं. आप कैसे प्रवक्ता हैं और कैसा ये चैनल है, पहले मुझे बताइए. इन विच बिग लार्ज पार्टीज विच प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडिपेंडेंस एंड देन रूल्ड दिस कंट्री फॉर 70 years, whether it was Third Front,
और कांग्रेस और आप एक तरफा 8 मिनट के अंदर सबको खारिज कर देते हैं। आप इतने बड़े आदमी हैं और इतना इंटेलेक्चुअल लेवल है आपका। आर यू बैलेंस्ड इन योर पैकेज विच यू आर स्पीकिंग ऑफ? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आर नॉट। यू आर अ बायस्ड मैन। नाउ लेट्स मूव अहेड। It is very clear that SC/ST reservation started with the Congress. It was serious about it. Ambedkar ji हो गए, आपके जगजीवन राम हो गए, मीरा कुमार हो गई. There has been a विवेक legacy. श्रीवास्तव And not only देखिए, in सुनिए the सुनिए Congress. विवेक श्रीवास्तव, just 1 minute sir, 1 minute. This is not a platform for your political speech. That you will have more opportunities perhaps at Jantar Mantar. मुझे एक बात बताइए, आपने बोला I am biased. Am I factually incorrect? ये बताइए. It's a yes, you are a biased man, factually incorrect. You have just Which one bit, job. sir? Which एक bit अच्छी is- सी स्पीच लिख करके Which- लाओ। कोई कांग्रेस के speech नहीं है, खिलाफ ये document है। उसको 8 मिनट से 10 मिनट तक बोलो। ये हाँ, देखिए। आप डॉक्यूमेंट है। अगर देखिए। बहुत अच्छे एंकर हो तो बताओ। ये 70 देखिए साल में document। कांग्रेस की क्या उपलब्धि है? ये देखिए। एक एंकर हो ना। ये देखिए डॉक्यूमेंट। आप गुस्सा क्यों हो रहे विवेक श्रीवास्तव? अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी से गुस्सा हो रहे हैं आप क्यों? Why do you lose your cool, sir? Why? I'm asking you a question. The Congress notification in 2011 does not mention SC/ST, the first notification. So why are you peddling half truths, trying to mislead people? That's the question. एक सच्चाई है, अंबेडकर सच्चाई है, बाबू जगजीवन राम सच्चाई है। उसके बाद मंडल कमीशन आया, इंप्लीमेंट हुआ, बैकवर्डों का रिजर्वेशन मिला। बीजेपी स्टैंड फॉर ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, हिंदू सुप्रीमेसी, है ना? संत महात्मा आकर के डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के लिए विवेक श्रीवास्तव, डोनाल्ड ट्रंप विवेक कहां से आ गया इसमें? विवेक श्रीवास्तव, you are exposing yourself. I'm sorry to say, every time you run out of a cogent answer, you resort to this. पहले आप एंकर को बायस बोल देते हैं. Some people like Mr. Sabharwal, some others are laughing. उनको बहुत मजा आ रहा है कि विवेक भाई ने अटैक कर दिया है, शुरू हो गया है. आपको लग रहा है आप इजराइल हैं? ऐसे नहीं चलता सर. ये देखिए डॉक्यूमेंट है, इस पे आप जवाब दीजिए पहले. ये क्या है 2011 डॉक्यूमेंट? ये समर्थक हूं। नहीं, क्या 2011 डॉक्यूमेंट भाई? इस देश में रिजर्वेशन कौन लाया? क्या डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो? कितना टाला है मोदी सरकार ने? जब इलेक्शन का टाइम आया बिहार करके, तो तब जाकर के आप उसको अनाउंस कर रहे हो। आप कर्नाटका पे उंगली उठाते थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का Vivek Srivastava, your problem is that your fundamentals, look, you may be an engineer, but your fundamentals are not clear, sir. There's a difference between a caste census, a census, and reservation. Get that straight. Before I get in the BJP, let's quickly get in Dr. Ranganathan. Dr. Ranganathan, ये बोल रहे हैं I am biased. मैं ये हूं, मैं वो हूं. सवाल का जवाब नहीं दिया है. Pranesh, this is the first time I got to know that Vivek is a engineer. बता देना कौन कौन से ब्रिज बनाए हैं, उनसे मैं 100 किलोमीटर दूर रहूंगा, कभी चलूंगा भी नहीं उन पे. कार तो दूर की बात है ले जाना उस पे. What is he talking about? And I'm sorry, he's completely derailed the debate. The debate was about exposing the fakery and fake news of Congress. That fake news is a middle name of Congress. The fact of the matter is for him to say, अब मेरा सारा टाइम चला जाएगा कांग्रेस की फेक न्यूज एक्सपोज करने पर नहीं, विवेक की फेक न्यूज एक्सपोज करने पर. When he's saying Congress, the party of freedom struggle, has always been for the Dalits and the emancipation. Now let me quote, I dislike any kind of reservation, more particularly in service. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my country to be a first-class country in everything. The moment we encourage the second rate, we are lost. If we go in for reservations on a communal and caste basis, we swamp the bright and able people and remain second or third rate. The only real way to help a backward group is to give opportunities for good education. Help should be given on economic consideration and not on caste. Unquote. Who said this? Jawaharlal Nehru on June 27, 1961. And the Congress has traditionally been always unsympathetic towards Dalit and the OBCs and the underprivileged. Did you know the Constitution mandated a commission to look into the reservations for the OBCs back in 1950? Congress never constituted a commission. It was a non-Congress government that commissioned it, Mandal Commission, and a non-Congress government that implemented it. In fact, Rajiv Gandhi was against the Mandal Commission implementation. He called it a can of worms. To tell you how shamelessly the Congress placates its
this Muslim vote bank at the cost of the underprivileged. The Congress government reinstated the 4% blanket reservation quota to Muslims in Karnataka, saying all Muslims can avail of this quota. To say that every Muslim of Karnataka belongs to backward class and can now also avail of reservations is just bizarre and makes a mockery of the real purpose of why we have reservations in the first place, to benefit the most underprivileged. So listen Vivek, आपने पढ़ा है सिर्फ मार्क्स और उसमें आए आपके 0 मार्क्स. थोड़ा और पढ़ लो भाई. ये अपने जो चाचा दादा नेहरू को करते रहते हो, ये फैक्ट्स है उनके. They were against Dalits. No, by the way, ये जो I'm borrowing your phrase, चाचा नेहरू 1951 में उन्होंने बंद कर दिया था कास्ट एन्यूमरेशन. विवेक श्रीवास्तव, इसका भी ध्यान रखिए, थोड़ी तैयारी करके आइए सर. ये ब्लस्टर से आप सोचते हैं कि शुरुआत करेंगे, ऐसे नहीं होता सर. 1 minute. And by the way, Dr. Ranganathan was asking which bridge have you built. He is working on that project. That bridge starts here and ends in Beijing. वो bridge जब बन जाएगा, विवेक श्रीवास्तव will not be seen here. Tuhin Sinha, how is the BJP, looking at this? Because you see, one simple question rattles this ecosystem. इनको अपने record से problem है. Well, good evening, Pranesh. Good evening, everybody. Sadly, the Congress party today has ceased to be an opposition party. It is a conglomeration of thugs, who peddle fake, false news of a dangerous kind every single day. So imagine today they are spreading misinformation on the caste census. Yesterday they were spreading, misconception and misinformation on G7, and before that on Asim Munir. Every day they peddle some kind of fake news to demean the nation and to create doubts in the minds of people. But over here, let me tell you exactly why the Congress is rattled today, because it is out of guilt. 2 years ago, I remember before the Chhattisgarh Assembly elections, they would claim that we have completed our caste survey in Chhattisgarh and in Karnataka. But they did not have the courage to bring it out, because even they knew that it was a hasty, fudged up exercise. In fact, even, recently, when they completed it in Telangana, it is fraught with anomalies of a very dangerous kind. The percentage of OBC has actually come down strangely from a previous survey. But let me also tell you that, we took our time in finalizing our decision to go ahead with the caste census, because it's a sensitive issue. We wanted to make sure that it is a flawless exercise, and we will ensure that it's a flawless exercise. Now, when you talk about another opposition party, and today it needs to be mentioned, because, the High Court of Kolkata has struck down Mamata Banerjee's equally vile attempts to placate, a particular community and rob the OBC community of what is actually due to them. And Calcutta High Court has rightly struck down Mamata Banerjee's attempts to include 90% of Muslim community, 90% of communities from the Muslim community in OBC. This is exactly what Congress... But that is out and out appeasement, but this is fakery of the worst kind. थोड़ा research तो कर लें कुछ बोलने में, you can spin something. But वो ज़्यादा spin हो जाता है तो ball wide हो जाती है. ये वही करते हैं हर रोज विवेक श्रीवास्तव. रमेश सबरवाल सर, ये आप भी मुझे बायस बोलेंगे आप, या जवाब देंगे आप ये नोटिफिकेशन पे? 2011 का नोटिफिकेशन है सर, ये देखिए, ये कांग्रेस टाइम का है, यूपीए इरा. इसमें भी SC ST का मेंशन नहीं है, बट वो डेटा हुआ था. I had gone through that notification also, the present notification also. We want that need of the RS right now is the caste census to be done in the country, because we want to improve the humanity, the quality of the human being. The people of this country are becoming more poor. Unemployment is increasing. So the need of R is to get the caste consensus. Yeah. To help the people are becoming more poor. Classes. Sir, 8 minutes. Mr. Sabharwal, 1 minute, sir, 1 minute. ये कौन सा एजेंसी है सर? Which is this agency जिसका डेटा ये विवेक श्रीवास्तव ने दिया होगा आपको रिसर्च, या पवन खेड़ा ने दिया होगा, या जयराम रमेश ने दिया होगा? बिकॉज वो हर रोज कुछ ऐसा बोल देते हैं दैट मुझे ये करना पड़ता है शो. Sir, it will help the government to look after them very well. No. On what basis are you saying that people are becoming more poor? What basis?
Why? Because the policies of this present government. ये देखिए, I am saying on what basis you are talking about policy. एक 30 second intervention, डॉक्टर रंगनाथन कुछ बोल रहे हैं. नहीं, देखिए मिस्टर सबरवाल इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड वेरी इरूडाइट पर्सन. आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम. लेकिन ये बीच में इन्होंने जो दो तड़के लगा दिए, ये सीधे विवेक की कुक बुक से आए हैं. नंबर 1, इन द लास्ट 10 years द मोदी गवर्नमेंट हैज पुल्ड 250 million people out of abject poverty. ये वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है. नंबर 2, इन द लास्ट ईयर दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड 47 million जॉब्स. ये कीम्स रिपोर्ट कह रही है. तो मिस्टर सबरवाल, आपको जो ओपिनियन रखने रखिए, लेकिन फैक्ट्स गलत मत बोलिए. बस यही, सॉरी इंटरप्ट करना चाहता था आपको, मैं आपसे माफी चाहता हूं. ओके मिस्टर सबरवाल, लेट मी आस्क यू मोर सब्सटैंटिव क्वेश्चन. आपने बोला दिस इज द नीड ऑफ द आवर. सर, व्हेन डिड यू रियलाइज दैट कास्ट सेंसस इज द नीड ऑफ द आवर? मुझे एक डेट बताइए. Sir, we want that from the beginning. Nation struggled against Britishers and we got independence. We were not having the resources at that time. Society, now we are totally committed on this issue. That's why our state governments are doing that in Telangana also and in Karnataka also. And we feel that the human condition must improve of the people of this country. And this will help the government of India. This will help the party who is ruling or who is in opposition. That is depend upon the people. But this will help the government to help the poor people. Sir, help me understand and help me help the viewer what you're trying to say, because I can't understand what you're trying to say. Let's bring in the RJD spokesperson. Sir, the Congress party had a chance to continue the so-called British legacy of enumerating caste that was stopped in 1951. चलिए, many people say, why do you go back to Nehru, etc., etc. छोड़ देते हैं नेहरू जी को थोड़ी देर के लिए. 2011 में जब किया, उसमें तो कास्ट डाल देते, वो भी नहीं किया आप लोगों ने. मुझे लगता है कि अभी रंगनाथन जी ने जो बातें कही और आपने कही, दोनों लोग कहीं ना कहीं एक रंगी बात कह रहे हैं. आप दूसरे को जरूर चैलेंज कर रहे हैं. आपने ये नहीं बताया कि देवेगौड़ा सरकार ने 96-98 में कैबिनेट की मंजूरी की थी और जातीय जनगणना की बात की थी, जिसको 99 में जब बीजेपी की सरकार आई, ऑन रिकॉर्ड लाल कृष्ण आडवाणी ने मना कर दिया उसको करने से. ये बात आपने नहीं बताई. आपने बताया कि राजीव गांधी विरोध में थे रिजर्वेशन के, लेकिन ये आपने नहीं बताया कि बीपी सिंह के सरकार में जो बाहर से समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, मंडल लागू हुआ था, कमंडल लेकर वो बाहर निकले. आपने ये नहीं बताया कि पुणे जैसे लोग उस समय में मीडिया में बैठ के, एंकर रूम में बैठ के डिबेट कर रहे थे. आरक्षण का मतलब है मेरिट कंप्रोमाइज होगा, मेधा से समझौता होगा, मेरिट से कंप्रोमाइज होगा. और प्रभुत्व जातियां जो मंडल विरोधी है, सड़क पे नंगा नाच कर रहे थे पूरे देश स्तर पे. ये बात आपने नहीं बताई. इनकम्प्लीट किया. आपने एक सारी बात बताई कि गोपीनाथ मुंडे जो एक्चुअली ओबीसी के चेहरे थे, 2010-11 में बीजेपी के तरफ से वो बैटिंग कर रहे थे और संसद के अंदर में एकमत बनी थी और उन्होंने उस समय कहा था कि अगर ओबीसी की गणना नहीं होगी तो अगले 10 साल के लिए अन्याय चलता रहेगा. प्रोफेसर नवल किशोर यादव, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं. मैंने बहुत कुछ नहीं बताई क्योंकि सब बताने का समय नहीं था. मैं आपको बताता हूं. देखिए, मैंने सुषमा स्वराज ने क्या कहा था इस पे, मैंने वो नहीं बताया. मैंने ये भी नहीं बताया, एक मिनट सर, एक मिनट सुन लीजिए. मैंने ये भी नहीं बताया आपको कि ये तीन इंस्टेंसेस हैं जिसमें कास्ट इन्यूमरेशन की बात हुई थी, मैंने उसकी भी जिक्र डिटेल में नहीं की. आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. अगर आपको लगता है बीजेपी ने नहीं किया, इस कॉज को बिट्रे कर दिया, तो कांग्रेस को तो कर देना चाहिए 2011 में. इनको रियलाइज कब हुआ कि कास्ट सेंसस इज द नीड ऑफ द आवर? दैट इज माई क्वेश्चन. आप क्यों बीच में रोकना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं लोगों तक जाए, केवल रंगनाथन जी की आवाज जाए और आपकी आवाज जाए? आप क्यों चाहते हैं? आप सुनिए तो पहले. गोपीनाथ मुंडे ने जब कहा कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो अगले 10 साल तो ओबीसी के साथ अन्याय हुआ. क्या कारण था कि राजनाथ जी ने प्रोमिस करने के बाद, जेटली जी के कहने के बाद 2020 में ऑन संसद के पटल पे आके नित्यानंद राय जी ने कहा ये यूटर्न लेने वाली तो सरकार पहले से ही है, ये पहली बार थोड़े कर रहे हैं. आपने कांग्रेस पे आवाज उठाए, कांग्रेस ने गलती की है, ये कौन नहीं जानता है. उन्होंने कोर्स करेक्शन किया है. मंडल कमीशन ने पहली बार जब आरक्षण दिया तो सरकारी नौकरी
पार्टी ने दिया। यूपीए 1 में जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, वो कैंपस में दिया, कैंपस में छात्रों में को आरक्षण दिया, ये बात सही है। उन्होंने कोर्स करेक्शन तो किया, आपने कोर्स करेक्शन किया होगा। टू द बीजेपी, तुहिन सिन्हा, प्रोफेसर नवल किशोर यादव इज सेइंग दैट यूपीए ने गलती की, बट आपकी सरकार तो यू टर्न सरकार है। नहीं, यू टर्न सरकार नहीं है। देखिए, ये बहुत संवेदनशील विषय है। हमने कभी भी इनकार नहीं किया था। आप कोई एक बयान दिखा दीजिए जब हमने इनकार किया हो। हमने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और जब हम तय कर लेंगे आपको बता देंगे। और हमने तय किया देश के हित में, जब हमने पूरी तरह से हमने सुनिश्चित किया कि यह एक फ्लॉलेस एक्सरसाइज होने वाला है। यह पिछली बार की 2011 की तरह कास्ट सर्वे नहीं होगा जिसमें 8.19 करोड़ जो है एरर्स निकाले गए थे और 1.5 करोड़ का एरर्स का कोई निदान नहीं हुआ था। बिकॉज दैट इज द लेगेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस हैज ऑलवेज बिलीव्ड that caste survey is an avenue, is an opportunity to fudge up data so that they can eventually benefit a particular community, which is something we will never do. अभी मैं आपको बता रहा हूं कि नीट एग्जाम में किसने ओबीसी कोटा शामिल किया? हमारी सरकार ने किया 2021 में, और आज उससे कितने बड़े स्तर पर ओबीसी स्टूडेंट्स को मदद मिली है, वो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला पा रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा किसने दिया? 2018 में हमारी मोदी जी की सरकार ने दिया। इसका रिकमेंडेशन पहली बार कब आया था? 1957 में काका केलकर कमीशन के द्वारा आया था। तो ये लोग जो सिलेक्टिवली कोट कर रहे हैं, ये लोग खुद जो हैं, ये लोग खुद नहीं चाहते थे। मोदी सरकार ने 100 साल के बाद सुनिश्चित किया है कि ये एक्सरसाइज होगा। ये प्रोफेसर यादव इज नॉट कन्विंस। प्रोफेसर यादव कुछ बोल रहे हैं। 1 मिनट प्रोफेसर साहब, 1 मिनट। नवल भाई 1 मिनट, मैं बस ये बोल रहा हूं सुषमा स्वराज वाले पॉइंट पे। आपको तो याद होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, मुझे याद है आप भी थे पैनल में, कि 2010 में सुषमा स्वराज ने चिट्ठी लिखी थी प्रणब मुखर्जी को, तो कोर्स करेक्शन तो उसी समय हो गया था। 2010 में तो इनकी सरकार भी नहीं। मैं बस आपको ये बोल रहा हूं, उसके बाद भी कांग्रेस अगर चाहती तो कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। बट वो छोड़ दीजिए, वो तो लार्जर क्वेश्चन है। मैं ये बोल रहा हूं कि फॉर अ नेशनल पार्टी एंड प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी टू पेडल लाइज लाइक दिस, कि जो उन्होंने खुद नहीं किया वो दूसरों को अक्यूज कर रहे हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं, कास्ट का मेंशन नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पुनेश जी, आप बीच में रोक के मामला को खत्म करना चाहते हैं, ये होगा नहीं। मोदी जी ने क्या कहा था कि हमारे लिए तो जाति इस देश में ही नहीं, यहाँ है जाति के नाम पे, महिला है, मजदूर है, युवा है और ये चार लोग हैं, हमारे लिए जाति नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार को बोला कि ये जाति सर्वे कराकर हम प्राप्त किए हैं, मध्य प्रदेश में बोला था। आप क्यों नहीं बताते ये सब चीज? ये सब चीज भी तो रिकॉर्ड है। ये मोदी जी की जो अपनी आप झूठ प्रचार की कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक जो संगठन है जिसके ये लोग सदस्य हैं, वो तो पूरा देश में झूठ फैलाती है, दुष्प्रचार फैलाती है। इस बात को आप कहने में क्यों डरते हैं? आप कांग्रेस को लाख झूठा कहिए, हम आपका सारी बात मान लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा झूठा, मैंने तो बस बोला कि ये जो 2 डॉक्यूमेंट है ये झूठ दिखा रही है, बस ये बोला मैंने। डॉक्टर रंगनाथन, आईपी सिंह, मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, देखिए, मैं नवल जी की बहुत इज्जत करता हूं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, और इनकी जो बातें कही वो सर आंखों पर। लेकिन मैं इनसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं और मुझे मालूम है क्योंकि मेरे मित्र होने के नाते ये उसका सीधा जवाब देंगे। नवल जी, क्या आप समझते हैं कि रिजर्वेशन एक हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है? मॉरल ऑब्लिगेशन, हाँ या ना? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड प्रॉमिस है प्रोफेसर साहब। और आपको कौन बताएंगे ये है? आप अभी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। ये गलत बात है। 10 सेकंड बोलने दीजिए ना। क्यों दबाना चाहते हैं पिछले दलितों को? नहीं, वो आपसे रैपिड फायर कर रहे हैं, आपने वो लॉन्ग फॉर्मेट में जवाब दे दिया, ये क्विकली कर लेते। सीधा सवाल का जवाब दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो पता ही है, आप मुझे ये बताइए, क्या ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल है। थैंक यू। अब क्या आप चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में भी 30% रिजर्वेशन होनी चाहिए, हाँ या ना? बोलिए, मॉरल ऑब्लिगेशन है तो बोलिए। रंगनाथन जी,
आप हिंदू मुस्लिम सब ऊपर ऊपर उठ ही नहीं सकते देखिए, अभी हिंदू मुस्लिम कहाँ हो गया? अभी आप बोल रहे थे मॉरल ऑब्लिगेशन। देखिए प्रोफेसर यादव, यू सी यू हैव टू टेक अ प्रिंसिपल स्टैंड। अगर आप प्रिंसिपल पे बोल रहे हैं तो फिर ये अलीगढ़ मुस्लिम नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जस्ट बिकॉज यू नो द नेम एज द वर्ड मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम कहां से हो गया सर? ये तो फिर एम्पावरमेंट की बात आ गई ना, एम्पावरमेंट की बात आ गई। पर यू सी यहां पे ऑपोजिशन ये नैरेटिव लूज कर जाती है, हिपोक्रेसी बाहर आ जाती है, फिर आप बोलेंगे एंकर बायस्ड है। लेट्स ब्रिंग इन दी समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन आईपी सिंह जी। कांग्रेस का नोटिफिकेशन देखा आपने, अभी सब पक्षों को सुन भी लिया आपने। आप कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस पार्टी ने उनका रिकॉर्ड देख लीजिए 1951 से जब तक वो सरकार में थे, अभी 2014 तक क्या किया कास्ट सेंसस का? सुन लिया है। देखिए, ब्रिटिश टाइम से लेकर 2011 तक समय पर जनगणना होती रही और आज 2025 आ गया, 21 में जनगणना होनी चाहिए, हम पिछड़ गए। और बीजेपी बायस माइंड से काम करती है। प्रधानमंत्री जी खुद दावा करते हैं कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। और मंडल कमीशन जब इंप्लीमेंट हो रहा था, वो दौर मुझे याद है, यूनिवर्सिटी में मैं था, और बीजेपी ने किस तरह से उसका विरोध किया, किस तरह से बीपी सिंह सरकार को गिराया और मंडल कमीशन का विरोध करती रही। और 2008 में शैक्षणिक संस्थाओं में स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने आरक्षण को दिया है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो अहम राज्य हैं जो पिछड़े वर्ग की बात आती है और जातिगत जनगणना की बात आती है। तो समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी लड़ाई स्वर्गीय नेताजी लड़े और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आज लड़ रही है और बिहार में आरजेडी लड़ती है। और हमने जातिगत की बात करी, हमारे ही बात पर कांग्रेस आगे बढ़ी है। हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना की बात आज बीजेपी जो 47 दिन बाद आज उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया, ये बात उनको कहनी चाहिए थी। और रंगनाथन जी की दो बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा पुल पुलिया सब मैं नहीं चढ़ूंगा। अरे भाई, बिहार में 100 से ज्यादा पुल पुलिया बीजेपी के सरकार में बने और गिर गए, गुजरात में गिर गए, महाराष्ट्र में कल गिर गए, लोग मर रहे हैं। और रही आपने कहा गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं, जिस देश में 82 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जीवित हो। रंगनाथन जी, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, कम से कम उसका भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। और गोपीनाथ मुंडे जी का वो बयान, तब मैं बीजेपी में था और गोपीनाथ मुंडे जी ने, मुझे याद आता 2010-11 में संसद में खड़े होकर कहा कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होती है 2011 में, तो देश भर में जो पिछड़ा आईपी सिंह जी, अगर देखिए गोपीनाथ मुंडे का आप बता रहे, मैंने सुषमा स्वराज का कहा, फिर इस हिसाब से तो नेहरू जी ने क्या कहा था, रिजर्वेशन पे क्या कहा था उन्होंने, डॉक्टर रंगनाथन ने बता दिया, पहले भी हमने डिस्कस किया। तो अगर डिस्कस करेंगे तो फिर सब प्रिंसिपल पे डिस्कस कीजिए। अभी उन्होंने कहा, अभी प्रोफेसर साहब ने, नवल किशोर जी ने कहा कि मॉरल ऑब्लिगेशन है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है। डॉक्टर रंगनाथन, रेस्पॉन्ड टू आईपी सिंह। हाँ, नहीं, देखिए नवल जी बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनसे भी बड़े मित्र आईपी सिंह जी हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता जिस तरह से नवल जी मैदान छोड़ के भाग गए, आईपी सिंह जी नहीं भागेंगे, कट्टर लड़ते हैं। लेकिन मैं इनसे एक बात कह दूं, नंबर 1, देखिए आपको भी मॉरल ऑब्लिगेशन का मैं आपसे प्रश्न पूछना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप तो कहेंगे कि एएमयू में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, आप ये कहेंगे, क्योंकि आपका ये पूरा तत्बा है जिसको आप प्लेकेट कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए प्लीज आईपी सिंह जी, क्या हायर जुडिशरी में जो कि कहती रहती है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, इंक्लूडिंग दैट कि रिजर्वेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग 33% विमेन रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस में भी रिजर्वेशन होना चाहिए? बोलिए हाँ या ना। 33% महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में इतना माहौल बनाया, राज्यसभा में 2 बार पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, आप ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? तो सीधा सवाल है आईपी सिंह जी, जो आप सोचते हैं बता दीजिए ना। 2024 में आप हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवाल देखिए, सरकार में आप बैठे हैं, जिस तरह से संस्थाओं को बीजेपी ने कमजोर किया, चुनाव आयोग को डर लग रहा है आपको बोलने से। अब खुद प्रधानमंत्री और एक सांसद, एक मंत्री बैठ के तय कर देगा चुनाव आयोग। और आपने ये भी कहा, नहीं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री क्लेम करते हैं कि वो इस तबके से आते हैं। क्लेम क्या करते हैं, वो तो है ओबीसी। यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण दे दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं,
अरे भाई नियत तो दिखाइए Oh, प्रधानमंत्री near जी। Tuhin Sinha, the BJP's intent is under scanner. देखिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हाँ, हम ओबीसी के उद्धार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 27 मंत्री, 27 मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट वर इंक्लूडेड फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, विच इज हिस्टोरिक। आपने कभी किया? उत्तर प्रदेश में बताइए कितने आपके जमाने में कितने होते थे? फॉर द फर्स्ट टाइम द कंट्री हैज एन ओबीसी प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। मैं आपसे आज कांग्रेस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है यहां पे, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर ये कर्नाटक में कास्ट सर्वे इन्होंने कराया है, तेलंगाना में कास्ट सर्वे कराया है, तो उसके हिसाब से मंत्रालय बदल दें इमीडिएटली जितने ओबीसी पाए जाते हैं उतने ओबीसी को शामिल करें अपने मंत्रालय में। फॉर राहुल गांधी एंड फॉर द कांग्रेस पार्टी especially, the caste survey was only and only a tool to mislead the people and to divide the people. We have called out the. I don't want to say too much about a party that does not know the difference between a survey and a census. So I don't want to go there. 8 minute, IP Singh जी, 8 minute. प्रोफेसर यादव कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सर। देखिए पुनेश जी, अभी रंगनाथन जी ने मोरल वैल्यू की बात की, जो इमोरल पार्टी के साथ है मोरल वैल्यू। मैं इनसे पूछता हूं, क्या मंदिर में रिजर्वेशन होना चाहिए? ये गलत बात मत करिए। एक ही जाति का आधिपत्य होगा। आप बताइए, एक ही जाति का आधिपत्य होगा मंदिर में? जब हम ही हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, तो वहां पे जगह मिलनी चाहिए। रंगनाथन जी एक बार बोल तो दो, आप बोल तो दीजिए एक बार। नवल जी प्लीज सुनिए मेरी बात। कैन आई प्लीज आंसर? प्लीज। आपको नवल जी, क्या आपको पता है कि 50% ऑफ द टेम्पल्स इन द साउथ, आपको पता है उनके हेड प्रीस्ट अपर कास्ट ब्राह्मण्स नहीं है? आपको पता है ये बात? आपको पता है कितने दलित है वहां पे हेड प्रीस्ट? यू हैव एनी आइडिया? बताइए। खुद आंसर करना नहीं आपको, क्योंकि आपको डर लगता है मुस्लिम से, उनकी अपीजमेंट हट ना जाए, इससे डर लगता है। आप ये सवाल पूछ रहे हैं जिनका आंसर आपके सामने है। गलत काम मत करिए, डोंट डू दिस। सदियों से हम दबाए हुए लोगों को आप यही बात आएगी। विवेक श्रीवास्तव अभी हंस रहे, मैं एक सवाल पूछूंगा इनको, अभी मॉस्क में या मुस्लिम में कास्ट होना चाहिए नहीं, अभी वो हंसी उनकी उड़ जाएगी और वो फिर कुछ बोलने लगेंगे कि आप बायस्ड हैं, ये हैं, वो हैं। एंड मिस्टर सबरवाल, आई एम आस्किंग यू वन फाइनल टाइम, व्हेन विल द कांग्रेस स्टॉप रिजॉर्टिंग टू सच cheap tricks, sir? ये क्या है ये? So these are not cheap tricks, We don't believe in that. Congress has some ideology, We have ideological people. We want to help poor people of this country. We want their upliftment. What's wrong if we are saying that? Yeah. Government should be transparent and they should start. It took you over 6 decades to understand that, people need to be helped. That the Congress wants to help in upliftment of the poor people. 60 साल लग गए. I hope the party continues to work with same sincerity as some of your outspoken spokespersons are doing, communications advisor, what have you. Let's leave it at that. Let's see how this story on caste census unfolds. I thank some of you for joining.